اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک میں موجود۔ دونوں رہنما جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکہ اور قطر کی میزبانی میں عرب اور اسلامی ممالک کی سربراہی میں خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مسلمان رہنما آج امریکی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم عالمی بینک کے صدر IMF، آسٹریلیا کے چانسلر اور کویت کے ولی عہد سے بھی ملیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ 81 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ سعودی عرب کی علماء کونسل کے امیر بھی رہے۔ امت مسلمہ میں نمایاں مذہبی خدمات سر انجام دیں۔ مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الشیخ کو سب سے زیادہ خطبہ حج دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سعودی مفتی اعظم عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی وفات پر پاکستان اور عالم اسلام میں گہرے رنج و غم کا اظہار صدر مملکت آصف زرداری نے کہا۔ مرحوم نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی ترویج، شریعت مطہرہ کی توضیح اور امت کی رہنمائی میں صرف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ کی وفات نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ غم ہے۔ کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ بیلجیم، لگزمبرگ اور مالٹا سمیت مزید 5 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر اٹلی کے وزیر اعظم کے فلسطین کو تسلیم کرنے سے انکار کے بعد ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ میلان، جنیوا میں بھی مظاہرے۔ احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کر دی۔ پاکستان مغربی ممالک کی جانب سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلانات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطح اجلاس میں خطاب، کہا بیجنگ میں کیے گئے تاریخی وعدوں کی تجدید کی ضرورت ہے۔ محض الفاظ نہیں بلکہ جرأت مندانہ اور قابل پیمائش اقدامات کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شام کے صدر احمد الشرع سے بھی ملاقات، تجارت اور ترقی سمیت مختلف شعبوں میں تاریخی روابط کو فروغ دینے کا اعادہ۔ فلسطین کے صدر محمود عباس کا 2 ریاستی حل کانفرنس کا خیر مقدم۔ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب میں مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی مخالفت، کہا حماس کو فلسطینی اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے کہا، عالمی برادری فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ جرائم جاری ہیں۔ قطر پر حملہ اسرائیلی جرائم کو ظاہر کرتا ہے۔ ترک صدر کا اسرائیل سے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ۔ یورپی کمیشن کی صدر نے بھی اسرائیل فلسطین تنازع کے لیے 2 ریاستی حل کو واحد راستہ قرار دے دیا۔ کانفرنس سے خطاب میں کہا، 2 ریاستی حل ہی واحد حقیقت پسندانہ امن منصوبہ ہوگا جس کے حماس کے وجود کو ختم کر کے اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا جا سکے گا۔ یورپی کمیشن کی صدر نے کہا، یورپی ممالک ایک ڈونر گروپ قائم کریں گے جس کی مدد سے غزہ کی تعمیر نو کی جائے گی۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس۔ ترک اور انڈونیشیا کے صدور کی تقریر کے دوران مائک میں تکنیکی خرابی، دونوں کی تقریر کے دوران کئی بار مائک بند ہوا۔ امریکی صدر کی آمد سے قبل نیو یارک میں پولیس الرٹ، ڈونلڈ ٹرمپ کے قافلے کی آمد کے باعث سڑکیں بند کر دی گئیں۔ پروٹوکول کے دوران فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی گاڑی بھی ٹریفک میں پھنس گئی۔ صدر میکرون نے چند منٹ پیدل چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران صدر ٹرمپ کو فون کر کے سڑک کھولنے کی درخواست بھی کر دی۔ غیر معمولی منظر شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔
एक सियासी रहनुमा ने BISP को एक फ्रॉड कहा। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। नामुनासिब बयान देकर इस रहनुमा ने 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन की। उनको अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। मज़ीद कहा, 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद की। 28 लाख मुतासरा ख़ानदानों को फ़ीकस 25,000 रुपए नकद इमदाद मिली। यही वो प्रोग्राम है जो सैलाब ज़दगान को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकता है। पंजाब में सैलाब से 33,75,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आया। सूबे भर में मजमूई तौर पर 12% काश्तशुदा फसल को नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया सैलाब से 9 डिवीजन में 24.82 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई। पंजाब में सैलाब से कुल काबिल काश ज़मीन का 8.1% मुतासिर हुआ। सूबे में सैलाब से सब्जियों का 44% काश्तशुदा रकबा भी मुतासिर हुआ। सैलाब से सबसे ज़्यादा 6 लाख एकड़ चावल की फसल मुतासिर हुई। गन्ने की फसल का तकरीबन 35% नुकसान, कपास की 5% से ज़ायद काश्तशुदा फसल को नुकसान पहुंचा। खुशहाली थी, सरो सब्ज खेत थे, अब सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया। बच्चे लेते अपनी जान बचाते मसे मसे निकले हैं, कोई इमदाद नहीं, कोई खंबा नहीं, कोई शय नहीं। तो खुदा दा तकवा तकते रब दा असी निकले हैं। सारे लुकावण की जगह नहीं है, तंबू ही नहीं दे के चलो तंबू दे वजना चलो असा तंबू लाते अपने बच्चे को असा मिलाऊंगा। बिल्कुल हुकूमत तामो नहीं करती, भाई क्या करिए, अच्छा तो बिल्कुल गरीब बंदे हैं। किसानों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। किसान गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ तावन किया जाए और हमने जो बैंक से कर्जे भी लिए हुए हैं वो भी कर्जे भी हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, वो कर्जे भी हमें माफ़ करने चाहिए। जनूबी पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। अलीपुर में सैलाब मुतासरीन तबाहाल घरों को वापसी। बस्ती वारान के मकीन उजड़े घरों की बोसीदा दीवारें और छतें देखकर अफसरदा। मुतासरीन घरों से ही नहीं, जिंदगी भर की जमा पूंजी से भी महरूम हो गए। घरों को पहुंचने वाले बहावलपुर के सैलाब मुतासरीन को नई मुश्किलात ने आन लिया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, ट्यूबवेल और घरों में लगे बोर बैठ गए। मुतासरीन का हुकूमत से मकानात दोबारा तामीर करवाने और माली इमदाद का मुतालबा। तबाहकुन सैलाब गुजर गया, मुश्किलात और मसाइल पीछे छोड़ गया। लियाकतपुर में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाबी रैले ने रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस कर दी। मकानात और फसलें सब तबाह। सैलाब मुतासरीन रुल गए। आरिफवाला में सैलाब के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कबूला शरीफ में सैलाब ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। महंगे दामों ठेके पर ली गई ज़रई अराजी पर काश्त फसलें तबाह हो गई। दरिया सिंध में कोटरी डाउन स्ट्रीम के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया खान पुल से 3.5 लाख क्यूसिक से जायद का रैला। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 134 हो गई। सूबाई रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से पंजाब के 27 अजला के 4,700 से जायद देहात मुतासिर हुए। 47 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए। सैलाब में फंसे 26 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब ने मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया। मुतासरा इलाकों में इब्तदाई सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिन अफराद का घर मुकम्मल तबाह हुआ उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे। मकान जुज़वी मुतासर होने पर मालिक को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपए दिए जाएंगे। मजीद कहा, सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। हर चीज़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अच्छी बात नहीं। चीन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज।
मुश्किल की इस घड़ी में दोस्त हमसाया मुल्क चीन पाकिस्तान की मदद के लिए पेश पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना ने हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजकर दोस्ती का हक अदा किया। इमदादी सामान में 12,000 खुसूसी खेमे और 100 डीजल जनरेटर्स शामिल। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆਗੁਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत पाकिस्तान और चाइना ने खसूसी तौर पर इन्हां दी मदद की है। सऊदी अरब में आज 95वां कौमी दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क की आम शाहराहों और इमारतों को कौमी परचमों से सजा दिया गया। कौमी दिन के मौके पर सऊदी शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात की बुनियाद एतमाद, अकीदत और बरादराना रिश्ता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी क़यादत और अपने अजीज़ सऊदी भाइयों और बहनों को पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक सऊदिया दिफाई ताउन के मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जिहत दी है। पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दिल की गहराइयों से दुआ गो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 74 बरस के हो गए। सालगिरह पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के मुबारकबाद के पैगामात। सिंध में खवातीन को अब हुकूमत पिंक स्कूटीज देगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत हालिया हफ्ते खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। पाकिस्तान में 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुंच गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 और 23 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल जेफरी एप्स्टिन से मुताल्लिक अपने मौके पर कायम। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अदालत में सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद करने की अपील कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने WSJ की खबर को झूठा करार दिया। $10 अरब हत्या के इज्जत का दावा दायर किया था। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे अबू धाबी में शुरू होगा। फाइनल तक पहुंचने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू होगा। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। हुसैन तल्लत की जगह हसन अब्बास को खिलाया जाएगा। और क्रिकेट उफुक पर नए उभरते ताबिंदा सितारों की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क भर के स्कूल्स के लिए बड़े टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल्स का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल में इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। प्रोग्राम में मुल्क भर से 391 स्कूल्स हिस्सा ले रहे हैं।